Hello, students. How are you? I hope you are all fine. Once again, I Hemant welcome you at Hemdisha English classes. Today, I am going to summarize the lesson Tiger King from Vista's 12th class book supplementary reader. The lesson number 2, The Tiger King, written by Kalki. So, before going to summarize, I would like to give you some introduction. The story revolves around a king whose death at the hands of a tiger had been foretold by astrologers when he was born. He tries to reverse the fate spelled out for him, and the author uses thinly veiled satire to walk the reader through the king's attempts, which later prove futile, in a manner that makes the readers laugh. Now, I would like to start summary. First of all, I would like to summarize in English, afterwards in Hindi. Same, The Tiger King, lesson number 2 from Vista's 12th class supplementary reader, The Tiger King, written by Kalki. Everyone has to die one day. This is the universal fact. You know, we know, everybody knows. One has to die. When Maharaja Jilani Jang Bahadur was born, the astrologers had foretold. Foretold means they make the prediction for his future that one day the king would have to die. Suddenly, the 10-day-old prince started speaking. He told them that all those who were born would have to die one day. 10-day child speaks. He asked him to tell the menace of this death. Everyone stood stunned, as an infant born just 10 days ago was talking in such a manner. The chief astrologer told the prince that he was born in the hour of bull, as bull and tiger were enemies. Therefore, his death would come from a tiger. Maharaja killed 99 tigers. Maharaja killed 99 tigers. The Maharaja grew stronger and took to tiger hunting. He was overjoyed when he killed the last tiger. When he told the chief astrologer about it, the chief astrologer was told. The chief astrologer told him that he may kill 99 tigers but must be careful with the 100th one. In 10 years, he killed 70 tigers. He banned the killing of tigers in Pratibandhapuram, the supported area. Yeah, the state. The tiger population became extinct at Pratibandhapuram. So the Maharaja married into a royal family in a state where tiger population was high. Thus he killed 99 tigers, but one was still left. There was no sign of tigers everywhere. Maharaja could not bear it anymore. He realized the land tax and also dismissed some of his men. Later, a tiger was brought for the Maharaja. Maharaja took his men for hunting. He shot the tiger but missed it. Since the tiger fainted on hearing the shot, the Maharaja did not realize that he had not killed the tiger. Maharaja's men knew it, but they feared that if they tell it to Maharaja, then they may lose for their job. They may lose their job. But so they killed the tiger. But the Maharaja did not know that he still had one tiger left to kill. Free from the threat of imminent death, the Maharaja had now decided to celebrate his 3-year-old son's birthday. The astrologer predicted is correct. He gifted him a wooden tiger. The tiger was made by an unskilled man. In surface, was a result splinter pierced into Maharaja's hand. The infection spread into his whole hand and Maharaja died. Thus, ironically, the faithful 100 tiger
though a wooden one, was cause of Maharaja's death and proved the prediction of the astrologer correct. The tiger wants to say, here I am at conclusion. What? Once again, I would repeat. The writer wants to say that no one can change what written in destiny, no matter what they do. That is our destiny, students. Everybody is having its own destiny. One has to accept it. This has been given in detail in this lesson, but I am summarizing. So here summary gets over, and now I am going to start in Hindi. Before that, I would like to request you to subscribe, like and share my channel, so all of you will be getting some notifications for my next classes, for my next lessons. Time to time, you and your friends will be benefited to have good marks in the examination. So thoroughly go through and listen carefully. Before that, you open your book also. While going through this book, this lesson of mine, this summary of mine, and go through your book also and try to understand. So best of luck. Jai Hind, Jai Bharat. Now this summary is being translated into Hindi. विद्यार्थियों, आपका स्वागत है 12वीं क्लास की विस्तास पाठ में से। मैं पाठ जो दूसरे नंबर का पाठ है, विस्तास जो सप्लीमेंट्री रीडर है, इसका जो टाइगर किंग पाठ है काल्की द्वारा लिखा हुआ, इसकी समरी सारांश में डाल रहा हूँ। लेसन नंबर 2 विस्तास सप्लीमेंट्री रीडर 12वीं क्लास की द टाइगर किंग बाय काल्की। तो इसका मैं संक्षिप्त परिचय पहले देना चाहूँगा। कहानी एक ऐसे राजा के आजू बाजू घूमती है जिसकी एक बाघ के हाथों मौत होगी, यह ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी। जब उसका जन्म हुआ था, वो काफ़ी कोशिश करता है कि उसके भाग्य को जो ज्योतिषियों ने बताया उसको उलटने की कोशिश करता है। लेखक जो है ना, राजा के प्रयासों के माध्यम से पाठक को चलने के लिए पतले पतले जोक का उपयोग करता है, व्यंग है, जो बाद में व्यर्थ साबित होता है, जिससे पाठकों को काफ़ी हंसी आती है। ये तो हुआ छोटा सा परिचय। आइए अब हम समरी हिंदी में चालू करते हैं। इसके पहले कि मैं समरी चालू करूं, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, हमेशा की तरह मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आने वाले लेसन्स भी आपको समय समय पर मिलते रहेंगे और आप लाभान्वित होते रहेंगे। अपने सहपाठियों को भी शेयर कीजिएगा। तो आइए अब हिंदी में समरी चालू करता हूँ। देखिए, ये तो भाग्य का लेख है। विधाता ने सबको जन्म दिया है तो मरण भी देगा ये। और एक कहावत भी है पूरे इसमें, जो दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। कंस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन। जब तक डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तब नया कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। तो आइए इसको लेते हुए टाइगर किंग की समरी हिंदी में मैं चालू करता हूँ। विस्तास 12वीं क्लास का काल्की के द्वारा लिखा हुआ। देखिए, एक दिन सबको मरना है। और जब महाराणा जिलानी जंग बहादुर का जन्म हुआ था, इनका पूरा नाम था महाराजा जिलानी जंग बहादुर। इनकी पैदाइश हुई थी तो एक भविष्यवाणी की गई थी ज्योतिषियों के द्वारा कि राजा को एक न एक दिन मरना पड़ेगा। लेकिन उस समय क्या हुआ, जब राजकुमार का जन्म होकर मात्र 10 ही दिन हुए थे तो उसके मुंह से एकदम क्या आवाज़ निकली, अरे जो लोग पैदा हुए हैं उन्हें एक न एक दिन तो मरना ही होगा। उसने अपनी मृत्यु का तरीका बताने को कहा। हर कोई दंग रह गया, क्योंकि 10 दिन पहले जन्म लिया हुआ एक छोटा सा बाल शिशु इस तरह से बात कर रहा था। तो मुख्य ज्योतिषी ने राजकुमार से कहा कि बैल की घड़ी में पैदा हुआ था। क्योंकि बैल और बाघ दुश्मन थे, इसलिए इसकी मृत्यु एक बाघ से होगी। बैल मतलब ऋषभ राशि को कहा जाता है। ये तो ऐसा कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, बैल और बाघ एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट रहते हैं, एनिमी की तरह, दुश्मन की तरह।
तो बाघ के हाथों इसलिए मृत्यु होगी। अब क्या हुआ, महाराजा मजबूत हुए, बढ़ने लग गए, बाघों का शिकार करने लग गए। जब उसने पहले बाघ को मारा तो बहुत खुश हुआ। जब उसने मुख्य ज्योतिषी को इसके बारे में बताया तो मुख्य ज्योतिषी ने उससे कहा कि वो 99 बाघों को तो मार सकता है, उसने 100वें बाघ से बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। 70 बाघों को मार डाला उसने, मालूम है, 10 वर्षों में। प्रतिबंधपुरम में बाघों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शेर, बाघ, टाइगर। क्यों? क्योंकि प्रतिबंधपुरम में बाघों की आबादी बिल्कुल विलुप्त हो गई, मरते जा रहे थे। तो महाराजा ने एक ऐसे राज्य में शाही परिवार में शादी की जहां शेरों की मतलब बाघों की आबादी अधिक थी। इस प्रकार उसने 99 शेरों को मार डाला, लेकिन एक अभी भी बचा था। अब बाघ तो कहीं दिख ही नहीं रहे थे, शेर कहीं दिख नहीं रहे थे। महाराजा भी सहन नहीं कर सके। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने भूमि का कर बढ़ा दिया, अपने कुछ आदमियों को भी नौकरी से अलग कर दिया। बाद में एक बाघ लाया गया महाराजा के लिए, और वो महाराजा अपने आदमियों के शिकार के लिए ले गए। उन्होंने बाघ को गोली मारी, लेकिन चूक गया निशाना। गोली की आवाज़ सुनते ही बाघ जो था शेर, वो बेहोश हो गया। इसलिए महाराजा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने बाघ को नहीं मारा है। महाराजा के आदमियों को पता था, लेकिन उन्हें डर था कि अगर वो महाराजा को ये बता देंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए उन्होंने बाघ को मार डाला। लेकिन महाराजा को ये नहीं पता था कि उनके पास मारने के लिए अभी भी एक बाघ बचा है। वो तो इस चीज़ में थे कि बाघ मर चुका है, क्योंकि वो मरा नहीं था, बेहोश हो गया था। आसन्न मौत के खतरे से मुक्त महाराजा ने अपने 3 साल के बेटे का जन्मदिन मनाने का फैसला किया था। अब देखिए ज्योतिषी की भविष्यवाणी कितनी सही निकली। यहाँ पे साबित होता है कि उसने क्या किया। महाराजा ने एक बाघ जो कि लकड़ी का बनाया हुआ था, बहुत सुंदर, उसे उपहार में दिया। और बाघ को एक अकुशल आदमी ने बनाया था, वो ठीक ढंग से बन नहीं पाया था वो लकड़ी का। इसी तरह उसकी जो भी सतह होती है ना, वो सपाट नहीं थी, खुरदुरी थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, महाराजा के हाथ में छींटा चुभ गया, संक्रमण उनके पूरे हाथ में फैल गया और महाराजा की मृत्यु हो गई। देखिए किस प्रकार की विडंबना है कि भाग्यवादी सौवा बाघ, हालांकि एक लकड़ी का था, महाराजा की मृत्यु का कारण था और ज्योतिषी की भविष्यवाणी को सही साबित कर दिया। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है विद्यार्थियों? लेखक के अनुसार, लेखक ये कहना चाहता है कि भाग्य में जो लिखा है उसको कोई नहीं बदल सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। ये हमारी डेस्टिनी लिखी हुई है। अब आइएगा, मैं आपको कुछ कठिन शब्द अर्थ है वो बताना चाहूँगा, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। पहले तो एस्टोनिशिंग, ASTONISHING, मतलब सरप्राइजिंग, चौंका देने वाला। स्टफेक्शन, STUPEFACTION, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू थिंक क्लियरली, स्पष्ट रूप से सोचने में असमर्थ होने की स्थिति को स्टफेक्शन कहते हैं। ये STUPEFACTION कहते हैं स्टफेक्शन। इंडोमिटेबल मतलब अनडेफिटेबल, अदम्य, INDOMITABLE, अनडिफिटेबल, इसका मतलब अदम्य, न्यारा। डिमाइस, डेथ, मृत्यु, DEMISE, डिमाइस, डेथ। बैबल, BABBLE, बैबल, टॉक रैपिडली एंड कंटिन्यूसली इन अ फुलिश, एक्साइटेड, इन इनकॉम्प्रेंसिबल वे। बैबल, BABBLE, बैबल का हिंदी अर्थ है मूर्खतापूर्ण या समझ के बाहर, जो समझ भी नहीं आए, इस प्रकार से एकदम इस तरीके से उत्तेजित होते हुए लगातार बात करें। तो ये तो हो गए शब्द अर्थ, और इसी के साथ ही ये समरी पूरी होती है। आप इस समरी को
अच्छी तरह से सुनिएगा, अपनी किताब पहले खोल के रखिएगा, वो पढ़ते जाइएगा। जहाँ समझ में नहीं आया पॉज दे के फिर से रिपीट करके आप पढ़ते जाइएगा। आपको बिल्कुल मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपने अगर गौर से सुनी इस समरी को तो आपको पूरा पाठ ही बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और आपको क्वेश्चंस के आंसर देने में कोई तकलीफ नहीं देगी। आप अव्वल नंबर लाइएगा, अच्छे अंकों से बहुत अच्छे तरीके से आपका ऊपर अपने ऊपर विश्वास करके अव्वल नंबर लाके अपने आप को पक्का और बहुत खुश अनुभव करेंगे, अच्छी ज़िंदगी बिताइए। हैव ए वेरी नाइस लाइफ। तो यहाँ पे मैं पाठ समाप्त करता हूँ, मैं आपसे विदा लेता हूँ अगले पाठ तक के लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू।